فرینڈس، میرا نام ہے عبدالرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ کوڈ۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں جاوا اسکرپٹ کے بہت ہی اہم اور کامن چیز کے بارے میں، جس کا نام ہے ٹو ڈو لسٹ۔ تو دیکھتے ہیں یہ ورک کیسے کرتی ہے، تو آئیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ رہی ہماری ٹو ڈو لسٹ۔ تو ہم نے ایک کاؤنٹر بنانا ہے، اس کے بعد ایک ان پٹ بنانا ہے جس کے اندر ہمارے سارے ٹاسک ایڈ ہوں گے۔ مثال کے طور پر میں جو کچھ بھی لکھ دیتا ہوں، آئی ہیو ٹو ڈو مائی ورک فرسٹ۔ میں نے پہلے اپنا کام کرنا ہے، یا جو بھی آپ لکھنا چاہیں جو روزمرہ کے امور ہوں گے۔ تو اگر ہم نے اس کو کر لیا ہے تو ہم بیسیکلی اسے کٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ہم ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، ایڈٹ کرنا چاہیں تو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کریں گے دیکھیں گے ایڈ ہو گیا، ڈیلیٹ کریں گے تو ڈیلیٹ ہو گیا، اور یہ کاؤنٹر بھی چلائیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس کے کوڈ میں کہ یہ کوڈ کیسے کیا ہوا ہے۔ تو پہلے ہم نے ایک بنائی لسٹ، مین ڈیو بنا لی، اس میں ہی ہم نے سارا کچھ کرنا ہے۔ مین ڈیو ہوگی ہماری لسٹ۔ اس کے بعد ہم نے ایک ہیڈنگ لے لی، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، جیسے ٹو ڈو لسٹ ہے تو میں مائی ٹو ڈو لسٹ یا ٹو ڈو لسٹ خالی لکھ دیتا ہوں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ایک کاؤنٹر کی ڈیو بنا لی جس میں چیزیں کاؤنٹ ہوں گی کہ ہم نے کتنی چیزیں لکھی ہیں اور کیا کیا کرنا ہے، کتنے ٹاسک ایڈ ہوئے پڑے ہیں، کیسے ہوگا۔ یہ چیزیں ہم نے ٹوٹل کاؤنٹر میں بنا دی، اور ان پٹ بنا دیا جس کے اندر ہم کوئی بھی ٹیکسٹ لکھیں گے، اور ایک بیسیکلی بٹن بنا دیا جس میں ہم فنکشنالٹی لگائیں گے، اور ایک لسٹ لے لی جس کے اندر ہمارا سارا ٹاسک شو ہوگا۔ تو چلتے ہیں جاوا اسکرپٹ کے کوڈ میں۔ جاوا اسکرپٹ میں کیا ہے، تو ہم بیسیکلی دیکھیں گے کہ ہم جاوا اسکرپٹ اور ایچ ٹی ایم ایل کے جو چیزیں ہیں، مثال جیسے ان پٹ ہو گیا، تو اسے کنیکٹ کیسے کرتے ہیں۔ تو کنیکٹ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں پری بلڈ فنکشنالٹی، جو ڈاکیومنٹ ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی، اور جو ہماری آئی ڈی ہوگی تو ہم اسے آئی ڈی دے دیں گے ایچ ٹی ایم ایل کی۔ ان پٹ بنانے کے لیے میں نے آئی ڈی یوز کی تھی، ہم ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو ڈو ان پٹ، تو ادھر میں نے آئی ڈی دے دی ٹو ڈو ان پٹ، تو یہ اس سے کنیکٹ ہو گیا۔ تو اگر ہم کام کرتے رہیں اگر ہم اسائن نہیں کریں گے کوئی چیز، یا کوئی چیز ہم نہیں بتائیں گے، ایچ ٹی ایم ایل کو جے ایس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے، تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمیں ایچ ٹی ایم ایل کی ضرورت ہوگی، تو ہم نے ایک فنکشنالٹی یوز کی۔ اسی طرح میں نے لسٹ کو ایڈ کیا، لسٹ کی فنکشنالٹی اسی کی طرح جیسے ہم نے پہلے کیا تھا، ڈاکیومنٹ ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی مائی لسٹ، اور ایڈ بی ٹی این کے نام سے دے دیا۔ تو ایڈ ایونٹ لسنر، اس کی ہم بات کریں تو یہ ایک پری بلڈ فنکشن ہے جسے ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، جب تک یوزر کوئی کام نہ کرے۔ مثال کے طور پر اسے آپ لے سکتے ہیں ایک گارڈ کی طرح۔ یہ ایک گارڈ ہے، جب تک یوزر کوئی کام نہیں کرے گا، کوئی چیز نہیں کرے گا، تو یہ مطلب کام نہیں ہوگا اس سے۔ تو ہم نے ایک ان پٹ پہ ایڈ ایونٹ لسنر، ان پٹ پہ ایک فنکشن لگا دیا ایڈ ایونٹ لسنر کے نام سے، جس کے ہم نے دے دیا کہ کی پریس۔ اگر ہم کی پریس کریں گے، کی پریس کسی بھی کی پریس کرنے پر، تو ہم نے اس کی کا نام کیا رکھ دیا، انٹر۔ مطلب انٹر کو پریس کرنے پر ایک فنکشن کال ہوگا جسے ہم کہتے ہیں ایونٹ کے نام سے۔ ایک ہم نے فنکشن بنا لیا کہ اف ایونٹ ڈاٹ کی از اکول ٹو انٹر، اگر انٹر کے برابر ہو جائے ایونٹ فنکشن، تو کلک جو فنکشن ہے وہ کال ہو جائے۔ ہم نے اکثر دیکھا کہ ایڈ اگر بٹن کو ہم کلک کریں تب یہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہم نے انٹر کا بٹن لگایا، انٹر کے بٹن کے لیے ہم نے یہ فنکشن کال کیا ہے تاکہ ایک فنکشن کال ہو جائے، اور بار بار ہمیں ماؤس سے کلک کرنے کی بجائے انٹر پریس کرنے پر بھی وہ چیز ہو جائے۔ تو ہم بات کریں گے ایک کلک فنکشن بنایا ہم نے، کلک کے نام سے آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں، جیسے کوئی بھی ہو گیا، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ ایڈ ایونٹ، یا کوئی بھی لکھ دیں۔ تو میں نے ادھر ایڈ ایونٹ وغیرہ کر لیں، کوئی بھی کر لیں، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ایک ویریبل لے لیا ایڈنگ ٹو ڈو، مطلب جو چیز ہم ایڈ کریں گے ٹو ڈو لسٹ میں، ان پٹ میں سمجھ لیں۔ تو اس کے لیے میں نے ان پٹ ڈاٹ ویلیو، ان پٹ کی ویلیو کے برابر ہو جائے گا وہ ٹاسک ڈاٹ ٹرم۔ یہ ایک پری بلڈ فنکشن ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں اسپیسنگ خالی کرنے کے لیے، یا کوئی چیز جو ایکسٹرا اسپیسنگ ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو میں نے یہ فنکشن بنایا، اور اس طرح ایک اف کنڈیشن لگا دی کہ ایڈنگ ٹو ڈو از اکول ٹو خالی ہو۔ اگر ایڈنگ ٹو ڈو میں کچھ نہ لکھا جائے تو ایک پاپ اپ میسج آ جائے کہ پہلے ایڈ فرسٹ کرو۔ کچھ بھی ہم لکھ سکتے ہیں،
कि यहाँ पे ऐड फर्स्ट लिखा हुआ है, तो मैं लिखता हूँ पहले कुछ लिखो, पहले कुछ लिखो या कुछ भी हम कर सकते हैं। उसको हमने रिटर्न करा दिया कि रिटर्न कर दो इसको। अगर कोई टास्क ना हो, कोई भी चीज़ ना लिखी हो इनपुट के अंदर और फिर क्लिक करें तो ये फंक्शन कॉल हो जाए, रिटर्न हो जाए, तो ये वैल्यू रिटर्न कर दे। तो इसके बाद हम मेन फंक्शनैलिटी पे आते हैं कि यहाँ पे मैंने यूज़ किया क्रिएट एलिमेंट। ये एक प्री बिल्ट फंक्शन है जिसको हम क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए। मैंने एक एज इट कांस्टेंट ले लिया, वेरिएबल असाइन कर दिया लिस्ट आइटम के नाम से, और इसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, या हम आईडी देते थे, यहाँ पे हमने क्रिएट एलिमेंट कर दिया। क्योंकि हमने HTML में कोई li वगैरह नहीं रखी, तो मैंने जावास्क्रिप्ट में ही उसे क्रिएट कर दिया। तो कॉन्स्ट टास्क के साथ टास्क टेक्स्ट, यहाँ पर मैंने एक स्पैन कर दिया, स्पैन। अगर आप चाहें तो H3 भी लिख सकते हैं कि आपको जो li है वो किस में चाहिए, H3 में चाहिए, H2 में चाहिए, या स्पैम में चाहिए, या P में चाहिए, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे H3 कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे H3 लिख देते हैं। टास्क टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट, मतलब ये टास्क टेक्स्ट है, उसके अंदर जो इनर टेक्स्ट है, हमने इनर टेक्स्ट कुछ भी लिखा जो li में आएगा वो टास्क एडिंग टू डू H3 में लिखा है। टास्क टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट मतलब इन एडिंग टू डू में हम जो भी लिखेंगे, ऐड करेंगे, जो भी टू डू में हम एडिंग करेंगे वो हमारी H3 में लिखा है हमें। या हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ लिख दें, H1 कर लेते हैं, तो देख लें आप जो भी करना है आपने। तो इसी तरह हमने एक चेक बॉक्स बनाया जो कट करने के लिए यूज़ किया जाता है कि हमने ये टास्क कर लिया। तो चेक बॉक्स के लिए हमने एक वेरिएबल असाइन कर लिया, लेट से चेक बॉक्स जो इज़ इक्वल टू है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट। यहाँ पे भी वही फंक्शनैलिटी यूज़ किया है मैंने कि एलिमेंट क्रिएट करेंगे, तो इनपुट हमने एक क्रिएट कर दिया, चेक बॉक्स इनपुट के साथ ही एक चेक बॉक्स क्रिएट कर दिया इनपुट में। तो चेक बॉक्स का काम क्या होगा, चेक बॉक्स को मैंने क्लास लिस्ट, हमने HTML में एक क्लासेज यूज़ करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में उसको देने का तरीका ये है कि हम क्लास चेक बॉक्स को जहाँ जिसको भी देना चाहिए, इनपुट को देना चाहिए जिसको भी, उसके साथ हम उसका नाम लिखेंगे डॉट क्लास लिस्ट। इसके बाद हम जो ऐड लिखेंगे, ये एक प्री बिल्ट फंक्शन हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा एक प्री बिल्ट फंक्शन है जो हमने बता दिया। तो हमने उसको क्लास दे दी चेक बॉक्स के नाम से। तो हमने इसकी टाइप क्या रखनी है, हम इनपुट में टाइप रखते हैं टेक्स्ट की, नंबर की, या चेक बॉक्स जो भी। तो यहाँ पे मैंने टाइप रख दी चेक बॉक्स कि ये हमारा एक चेक बॉक्स है। तो एक फंक्शन मैंने बना दिया, चेक बॉक्स पर एक फंक्शन लगा दिया। ये फंक्शन काम क्या करेगा, चलो हम देखते हैं कि चेक बॉक्स का एक फंक्शन मैंने चेक बॉक्स ले लिया, ये वेरिएबल को मैंने कॉल किया ऐसे समझ लें, और उस पर मैंने एक ऑन चेंज, ये एक प्री बिल्ट फंक्शनैलिटी है कि इसको हमने फंक्शन देना है, इक्वल टू फंक्शन के नाम का दिया। अब फंक्शन में क्या हो रहा है कि टास्क टेक्स्ट डॉट स्टाइल, हमने टास्क टेक्स्ट में स्टाइल कर दिया, या आप बेसिकली CSS में भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वैसे मैंने JS में यूज़ कर दिया, कोई मसला नहीं है इसका। टास्क टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन हमने पढ़ा होगा, अक्सर चीज़ों के लिए हम डेकोरेशन हम उनकी ख़त्म करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन हो गया, अक्सर जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो हमें याद होंगी। तो मैंने एक फंक्शन यूज़ किया, यहाँ पे हम टर्नरी यूज़ करते हैं, ये इस फंक्शन को हम कहते हैं टर्नरी। तो मैंने एक टर्नरी यूज़ कर दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन इज इक्वल टू चेक बॉक्स चेक, वो हमने कंपेयर कर दिया। जिस तरह हमने इफ़ कंडीशन लगाते हैं इसी तरह हमने उसको कंपेयर कर दिया, ये कंपेयर कर दिया चेक, अगर वो चेकड हो जाए, अगर वो टिक हो जाए या उसका क्लिक हो जाए, टिक का निशान हो जाए, तो वो इक्वल हो जाए लाइन थ्रो। अगर वो क्लिक हो तो उस पर एक लाइन आ जाए, लाइन लगाएंगे। अगर नहीं तो अगर क्लिक नहीं किया तो नन रहे मतलब उस पर कोई लाइन ना हो। तो इस तरह हमने एक फंक्शन बना दिया चेक बॉक्स का, और यहाँ पे आएंगे तो हमें एडिट का BTN मिल जाएगा बटन पे। एडिट का BTN हमने कैसे लगाया, तो कॉन्स्ट एडिट BTN के नाम से हमने एक वेरिएबल असाइन किया, कांस्टेंट लगा दिया इज इक्वल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हमने क्रिएट किया बटन को, एडिट का बटन हमने क्रिएट किया। हालांकि हम वहाँ
लगा सकते थे HTML में, लेकिन हमने यहाँ पे CSS ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, HTML। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में देख रहे हैं, आप वहाँ भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो क्रिएट एलिमेंट के नाम से हमने पहले भी देखा, एक प्री बिल्ड फंक्शनैलिटी यूज़ की जिसके नाम से हमने बटन यूज़ किया। तो हम देख रहे हैं कि ये बटन क्रिएट तो हो गया, तो ये हमने दिखाना कहाँ है, कहाँ आएगा, क्यों आएगा, किस लिए आएगा। तो इसके लिए फंक्शन तो हमने क्रिएट तो कर दिया, अब ये तो हवा में घूमता रहेगा, कहीं भी जाता रहेगा। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे हम अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए, अपेंड चाइल्ड के नाम से। अपेंड चाइल्ड के नाम से अभी हम एडिट का BTN दे रहे हैं। तो मैंने लिस्ट आइटम में जो मेरा अपेंड चाइल्ड, मैंने एक फंक्शन लगा दिया जहाँ पे एडिट BTN का, एडिट BTN जो है वो मेरी डिस्प्ले कराए मेरी स्क्रीन पर या ब्राउज़र पर कहीं भी, जो मैंने उसको बता दिया, हमने उसे असाइन कर दिया। इसी तरह हम एडिट BTN का इनर टेक्स्ट, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे वैसे फ़ॉन्ट ऑसम से एक फ़ॉन्ट ले लिया जहाँ पे मैंने लिख दिया, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कोई एडिट का मतलब कोई चीज़ लिख भी सकते हैं कि एडिट हो जाए या कुछ हो जाए। तो यहाँ पर भी मैंने एक क्लास लगाई, जैसे क्लासेस यूज़ करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि एडिट BTN डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, मतलब एक हमने क्लास ले ली ताकि हम इसको CSS दे सकें। तो एडिट BTN के नाम से मैंने एक क्लास ले ली। तो इसका काम क्या होगा, हमने इस पर भी एक फंक्शन यूज़ किया कि एडिट BTN डॉट ऑन क्लिक, क्लिक पर एडिट BTN पे क्लिक पर फंक्शन कॉल हो, इसके हमने लेट टेक्स्ट, हमने इसको टेक्स्ट ले लिया, एक प्रोप्ट कर दिया, एडिटेड एंड प्रोप्ट मतलब कोई भी चीज़ ऐड कर दिया, एक फंक्शनैलिटी है प्री बिल्ड। तो एडिट एनीथिंग, हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं, तो ये कुछ भी हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हमने रख दिया स्ट्रिंग में और हमने इसको बता दिया कि एडिट किस चीज़ को करना है। तो टास्क जो लिखा होगा इनर टेक्स्ट के अंदर उसको हम एडिट करेंगे तो ये एडिट हो जाए। और यहाँ पे हमने इफ कंडीशन लगा ली, अगर टेक्स्ट इज इक्वल टू नल, मतलब टेक्स्ट ज़ीरो हो, टेक्स्ट कुछ ना लिखा हो, तो रिटर्न करा दे खाली, खाली इनपुट रिटर्न करा दे। और अगर नहीं तो अगर कोई टेक्स्ट है तो उसको एडिट करा दे टास्क टेक्स्ट में डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट हमने ऐड करा दिया टास्क टेक्स्ट के अंदर, जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे हम उसको इनर टेक्स्ट के अंदर एडिट करा देंगे। तो इस तरह हमारा एडिट का बटन हो गया, इसको हम एडिट के लिए यूज़ करेंगे। और नीचे आएंगे तो हमारे पास डिलीट का BTN है। डिलीट BTN हम कैसे यूज़ करेंगे, कॉन्स्ट डेल BTN, ये हमने कोई भी वेरिएबल असाइन कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। तो कॉन्स्ट से एडिट BTN में कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID हम यूज़ करते थे, यहाँ पे हमने डॉट क्रिएट, अगर हम बनाएंगे HTML में तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID यूज़ करेंगे। अगर हमने यूज़ नहीं किया, हम डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में बनाना चाहते हैं, तो हमने क्रिएट बटन कर दिया, हमने एक बटन क्रिएट कर दिया जिसको हमने क्लास दे दी, यहाँ पे क्लास दे दी डेल BTN को हम क्लास दे रहे हैं डॉट क्लास लिस्ट, क्लास दे रहे हैं ऐड, क्लास में हम ऐड कर रहे हैं डेल BTN के नाम से मैंने इसको क्लास दे दी। तो डेल BTN डॉट इनर HTML में क्या होगा, यहाँ पे भी फ़ॉन्ट ऑसम से मैंने एक फ़ॉन्ट लगा दिया, लेकिन आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, डेल लिख दें, डिलीट लिख दें, कुछ भी कर लें। तो यहाँ पर भी मैंने एक फंक्शन यूज़ किया, डेल BTN पे ऑन क्लिक पर फंक्शन कॉल हो जाए कि लिस्ट आइटम इज डॉट रिमूव, ये प्री बिल्ड है, प्री बिल्ड बिल्ट इन फॉर्म है जावास्क्रिप्ट में, कोई भी फंक्शनैलिटी है प्री बिल्ड भी होती है, हम यूज़ करते हैं। ये प्री बिल्ड फंक्शन है, रिमूव कर दे। ऑन क्लिक पर अगर हम डेल BTN पे क्लिक करें तो ऑन क्लिक हो जाए। और अपडेट काउंटर हमने बनाया नहीं, तो इसके बारे में आपको समझ नहीं आएगी, मतलब एक फंक्शन मैंने कॉल किया है, तो कॉल फंक्शन कर दिया, कॉल अपडेट काउंटर, मतलब अपडेट काउंटर ख़त्म हो जाए, जो काउंट किया है उसने वो ख़त्म हो जाए। तो हम अब यूज़ किया, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अपेंड चाइल्ड किस लिए यूज़ करते हैं। अपेंड चाइल्ड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम दिखा सकें अपनी डिस्प्ले या ब्राउज़र पर उसे शो करा सकें। अगर नहीं यूज़ करेंगे तो ये घूमता रहेगा, हमें नज़र नहीं आएगा और समझ भी नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। तो इसलिए हम ये फंक्शन कॉल करते हैं। तो मैंने एक इनपुट की वैल्यू को कॉल कर दिया, यहाँ पे अपडेट काउंटर हम नीचे देख रहे हैं कि काउंटर कैसे बनेगा। तो मैंने अपडेट काउंटर को फंक्शन है एक,
उसको मैंने कॉल करा दिया इधर, और इनपुट डॉट वैल्यू, इनपुट की वैल्यू जो प्रिंट होगी, जो हम लिखेंगे वो प्रिंट करा दे। यहाँ पे मैंने इनपुट की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए ले लिया है। तो आगे हम बात करेंगे काउंटर की। हमारा काउंटर कैसे वर्क करेगा, काउंटर हम कैसे लगाएंगे, क्यों करेंगे। तो ये सिंपली मैंने एक फॉर लूप में बनाया हुआ है। तो मैं आपको फॉर लूप के बारे में तो ये बेसिक है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर लूप यूज़ होती है मतलब किसी भी चीज़ को बार बार दोहराने के लिए, जितनी मरतबा चाहें। ऐसा नहीं कि हम यूज़ करते रहें लिखते रहें, इस तरह हम थक जाएंगे। तो इस तरह मैंने फॉर लूप यूज़ होती है एक चीज़ को बार बार लिखने के लिए। हम उसे बता दें कि यहाँ से 0 से या 1 से यहाँ तक आप प्रिंट करा दो, तो यहाँ तक इन्फिनिटी करा दो, तो इन्फिनिटी यहाँ तक आप चाहेंगे वहाँ तक प्रिंट करेगी। तो इस तरह मैंने एक फंक्शन लगा दिया, अपडेट काउंटर। अपडेट काउंटर के नाम से मैंने एक फंक्शन यूज़ किया, जिसको लेट काउंटर डिस्प्ले इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट। ये मैंने एक वेरिएबल असाइन कर दिया उसे कि काउंटर डिस्प्ले। मैंने जो एक डिव बनाई थी, आपको याद होगी, यहाँ पे एक काउंटर के लिए हमने एक डिव बनाई थी ये वाली, इसको हमने दिया था टास्क एल आई। यहाँ पे मैंने टास्क एल आई के नाम से आईडी यूज़ की और उसे मैंने असाइन कर दिया। तो टोटल जो हमने टोटल लिखाना है, लेट टोटल इज इक्वल टू 0। आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से नहीं। तो जावास्क्रिप्ट अक्सर 0 से स्टार्ट होती है चीज़ें। तो मैंने इसको टोटल इज इक्वल टू 0 करार दे दिया और फॉर लूप लगा दी कि लेट आई इज इक्वल टू 0। आई मेनली यूज़ होता है, मतलब बेसिक है। आई के जे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप, मेन नहीं है कि आप आई यूज़ करें, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो आई इज इक्वल टू 0 कर दिया और आई ग्रेटर देन लिस्ट डॉट चिल्ड्रन डॉट लेंथ, मतलब लिस्ट के अंदर जो आइटम्स होंगे उसकी लेंथ के बराबर हो जाए आई। तो हमने आई में एक प्लस कर दिया, एक प्लस होता रहे, जिस तरह ऐड करें तो एक प्लस उसमें होता रहे, टोटल इसमें एक प्लस होता रहे। मतलब टोटल है 0 है, तो हम जैसे ही ऐड करें तो 1 एक प्लस हो जाए, 1 हो जाए, और फिर ऐड करें तो यहाँ 2 हो जाए, फिर ऐड करें तो यहाँ पे 3 हो जाए। तो मैंने काउंटर डिस्प्ले करा दिया डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू टोटल काउंट। हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं पहले। तो ये मैंने एक स्ट्रिंग ले ली और ये वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया, इनर टेक्स्ट के अंदर डिस्प्ले करा दिया। तो ये हमारे हो गया टू डू का मुकम्मल। जो टू डू हमारी हो गई मुकम्मल कि टू डू लिस्ट कैसे वर्क करती है, इसका कोड कैसे होता है, जीएस का कोड कैसे होता है। तो हमने यहाँ पे एक चेंजिंग की थी, जो ये वाली कहाँ गई, ये वाली ऐड इवेंट। यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया था ऐड इवेंट के नाम से, हमने वहाँ पे लिखा हुआ था चेक। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, बटन पे लगाना है हमने फंक्शन, तो हमने बटन पे ये लगा दिया फंक्शन। तो अब हम देखेंगे तो हमारी टू डू लिस्ट रेडी है। तो चेक करने के लिए हमने इसका कोड भी मुकम्मल समझ लिया है, तो हम इसको चेक कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आई हैव टू प्रे फर्स्ट, मैंने पहले नमाज़ पढ़नी है, नमाज अदा करनी है, या ऑफर प्रेयर, कुछ भी हम कर सकते हैं। और इंटर दबाने पर ये वर्क करेगा। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और ये देखें हमने वहाँ पे लगाया था H3, तो ये हो गया H3 में दिखा रहा है। तो इसकी स्पेस हमने ज़्यादा नहीं दी, इसलिए वर्किंग में कुछ मसला दे रहा है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, स्पैन कर सकते हैं, स्पैन लिख दें यहाँ पे या कुछ भी लिख दें, तो ये बेसिकली वर्क करेगा। आई हैव टू डू वर्क फर्स्ट, तो हमने ये पहले वर्क फर्स्ट किया। इसको अगर हमने एडिट कराना है तो ये एडिट कुछ भी कर लेंगे, मिसाल के तौर पर कुछ भी कर देते हैं तो ये एडिट हो गया। अगर हमने डिलीट करना है तो डिलीट, अगर लाइन लगानी है तो लाइन लग जाएगी। और काउंटर भी चल रहा है तो हम कोई और चीज़ भी ऐड करा सकते हैं, कुछ भी लिख दें, या आई हैव टू डू माई वर्क फर्स्ट, मैंने अपना काम करना है पहले। तो हम देखेंगे कि ये भी वर्क कर रहा है। तो ये भी कट हो गया, डेल हो गया, एडिट हो गया, जो भी करना चाहें, और काउंटर भी वर्किंग में है। तो ये रही हमारी बेसिकली मुकम्मल टू डू लिस्ट का कोड, जो बेसिकली सिंपल यूज़ हुआ था जावास्क्रिप्ट का। सिंपली जावास्क्रिप्ट के कोई ख़ास नहीं थे जो कम्प्लेक्स हों या टाइपिकली जो हमें मुश्किल में डालें। तो ये रही हमारी जावास्क्रिप्ट। तो अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना काफ़ी। और ये रही हमारी टू डू।